Okay, welcome everyone, and welcome Professor Dr. Zishan as well. Of course, we are really grateful for your time and for accepting our invitation um, for this webinar. So we like attendees will join us along the way, um, but let's begin the discussion. So, and like I have personally a lot of questions from you as well, and of course, but for the general audience, because this will be on YouTube as well. Can you please begin with your introduction not as a professor only, but of course, what inspired you to become who you are today? Yeah, for the audiences who don't know you. Thank you, first of all, Nalaro. If I'm not wrong, your It's pronunciation is okay. okay. It's Right, fine. okay. So I've been looking at your profiles and, since probably 2 or 3 years, I guess. But I think it's the first time that we are directly interacting, right? So No, I really, I interviewed you for my master's research in plastic. it was a video interview. No, it was an audio interview. It was an audio, right? Yeah, So anyway, I appreciate your effort thank you. towards the climate and towards the education. Your contribution was, acknowledged. As long as my introduction is concerned, I graduated from Iran University from 94 batch, graduated in 2000. And then I joined textile industry I worked about 8 years. And then because one of my mentor, he was on a PhD. So whenever he meet, he always insist me to, Dishan, please do a PhD. So because he was a PhD. So anyway, so the dream came true when I later joined Mehran University in 2008. So after 8 years of industrial experience, and I work in the production day and night. Then later on, I joined Mehran University as a lecturer. And in 2011, I left Pakistan for uh, my PhD, and I did my PhD in 2.5 years from Japan, Shinshu University, specialized in nanofibers. And that was a time that I really learned the how actually the research works, how the societies and nations built, and why the Japanese research or innovation is always, not always, but the most of the time at the top. Of course, there are certain other countries as well. So after my PhD, I joined my Mehran University again, and I continued. But I transformed Japanese model into Pakistan. So here was my journey started in 2013. First of all, I built my team and I inspired my students around my vision and tried to copy the Japanese model. So one of the example I usually give. So in our lab, we used to separate the garbage, papers and glasses and plastics. But later on, whenever our sweeper came, he all They mixed will. it. So although it was not a good practice, but at least it was our we taught our student that actually this is our duty to do it. And okay, later this is the first phase. Maybe in the later phases we'll be able to really utilize those vases in proper way. Yeah. Yeah. So that was the way we were trying to copy everything. So most of the product we whenever we have some visits of the from the government and from the industries, so we received the message that textile department or nanomaterial research lab will be visited. So please be prepared. So what we do is we take the Japanese product on the table, and for example, there are 20 products for Japanese products, and only just one product was made in Pakistan, and that was actually not the product. That was just a prototype or laboratory results. But we were very very clear. Our objective and vision was very clear. The one day these all products will be replaced with the Pakistani products. So this was all story and became a professor in 2017. And our objective was not just producing research papers, but also some patents, some trademarks,
and we also started developing products. And things are, moving. Still, we are struggling it. We have long way to go. Maybe people see us, our team, as a successful entrepreneur or maybe some other, but Role models. honestly, Role models is the right word I would use for you. yes, yeah, but honestly, a lot to go. Yeah. Too. I mean, it's such a huge way to go. So the thing is, now we have one startup company, NanoCrow SMC Private Limited, and the second one is a banana leather. And under that umbrella, we are doing, various stuff. Let's see, we will receive some. The success, as long as the success is concerned, I would say there was a dream. So I'll tell you one story. I was sitting with my Japanese professor, and at that time I was doing a PhD. It was probably in 2011. So I saw lots of products on his table. I asked my professor, you are a researcher. You must be doing something, laboratory work or producing some very good articles. But what those products are doing it on your table, and why I often see some of the company uh, personnel often visit your office and they seek the advices from you. They take the products from you. So what is the story? So he told the story. Actually, we are producing uh, masters and PhD students, and they are doing research. But this is the our product developed. We have some patents, and my professor had 100 plus patents, at that time. At In two, that time. yeah, in 2011, and the Wow. counting, is going on. So well, so see, it's if you surround by the good people, if you want to see, if someone has to tell you what is your future, tell me your friends, I will tell you your future, right? So I was associated with them. So he had 100 patents, so just two patents I also got. But from Pakistan perspective, oh, you have two Japanese patents, but I say just two patents. Yeah. So it's all about how I mean how what kind of people are surrounding you. This is very important. So thing is, so I learned, and from that day, I say, okay, one day, I don't know how or when, but at least I was very much clear that yes, we live in Jamshoro, we have lots of power failure issues, we have lots of water issues, all blah blah issues, and even we have a student have our own, priorities. So keeping all that in consideration, we had a vision that yes, one day, at least one product we want to see in people's life, that okay, yes, we can say like my Japanese professor used to say, or most of the Japanese professors used to say, have you seen the Toyota company in that product? This is my product. Have you seen this product? This is my product. Have you seen their satellite they recently been sent to the space? That part is prepared by us, and this is what the level is speed. So anyway, luckily we were successful in that way, that the corona came, and we produced a face mask and blah blah and the rest of the history. And No, no, nowadays, no. It's not uh, just the history. We are interested in that history. And yes, so I understand ki, like आपकी PhD, of course, nano fiber smithy, and that would have eventually end up in a creating a business, uh, doing something with the nano materials. But I'm sure ये इतना straightforward नहीं रहा होगा, and there would be um so that journey, that part of the story of like doing, and like in fact, why did you choose nano materials for your PhD? If there is a story to that, if there's an interesting story to that, and then of course that happened during COVID, but of course उसके behind उसके पीछे आपका बहुत सारा काम होगा, and how um it would be a wrong question to ask how did you identify the problem was out there, but what was the click moment again, like you just realized now this is the time and yeah, this is the product. yeah. The success is not an accidental, right? Of course. When preparation meets an opportunity, so we always say Yeah. the opportunity, but and always we say with success, or even sometimes we say the opportunity knocks the door, the prepared minds, right? Yeah.
opportunity is not just an opportunity, right? So the thing is, when I arrived in Japan, so I had two choices. There was a one choice that I should go for the topic or research which I'm already expert, especially in the coloration or dyeing of textiles. And the second option was nanofibers, because that lab that I was about to join, everyone was working on nanofibers. So although I came to know it was the first time and it was difficult indeed. So I thought I go for the new one because I always take the challenges. मैं आपको बताऊं कि challenges की बात है ना, एक दफा एक टाइटल है चार्टर्ड कलरिस्ट, एसोसिएटेड सोसाइटी ऑफ डायरेक्ट कलरिस्ट। तो बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं इसके, जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है इस तरह हमारे चार्टर्ड कलरिस्ट होता है। उसमें 6 पेपर होते हैं और इट वाज इन 2003 आई appeared all 6 exam in one attempt. So first I registered myself, but I didn't know कि अगर इसमें कोई भी पेपर में फेल हो जाता हूँ तो मुझे रीअपियर होना पड़ेगा सब में। Okay. मुझे एग्जाम वो एग्जाम में मुझे काफी बाद में पता चला, ठीक है। तो अब तो जाहिर है जर्नी शुरू होगी, लेकिन वो लकीली वो 6 के 6 पेपर मैंने पास किए वन अटेम्प्ट में, एंड इट वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंस 1884। Wow. 1884। अच्छा, हमें ना जब पता नहीं होता, अगर ये मुझे पहले पता होता ना मैं ना करता, क्योंकि लोग डराते हैं ना आपको कि Hmm. भाई तो बहुत मुश्किल है, तो आप कर ही नहीं सकते। तो मेरा ख्याल से मेरे साथ भी ना कुछ मेरी इसी तरह ही हुआ है, मुझे चीज़ों का इतना नहीं पता होता जितना आम लोगों को पता होता है, और हम लोग कूद जाते हैं ना, बस ये कि डूबने से बच जाते हैं, बस ये होता है थोड़ा सा। Ignorance is a bliss. हाँ ऐसा, ऑफ कोर्स हम रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जो ना ओवर केयरफुल होना भी जो ना वो मतलब फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना आपकी शिप सबसे ज्यादा सेफेस्ट है कि आपको उस किनारे पे खड़ा कर दें, तो फिर कभी नहीं, ठीक है। तो बात ये कि यहाँ से हमारी मेरा जर्नी शुरू हुई और नैनो फाइबर्स पे काम शुरू किया, और फिर वो चीज़ें इतनी आसान होती गई कि बस मतलब एक एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, हमारे पास वहाँ पे जो माहौल है ना शिंशुने से जापान में, वो कुछ ऐसा है कि बहुत फ्री एंड दिया हुआ है हमें ना वहाँ पे। मैं अभी भी आपको पता है हर साल मेरा वहाँ पे जाना होता है, तो हम वहाँ पे काम करते हैं। वो बस कहते हैं कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, पे रिजल्ट आना चाहिए कैसे, इवन आपके कोलेबरेटिव फ्रॉम पाकिस्तान भी होते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सारे प्रोफेसर ऐसे नहीं होते, पूरा जापान ऐसा नहीं है। तो इट वाज अ विन विन, ऑफ कोर्स यहाँ से फिर पब्लिकेशंस में हम करते रहे, कोलेब्रेशन भी करते रहे, तो नैनो फाइबर में आते गए। मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब मैं वापस आया तो हमने नैनो फाइबर्स पे काम शुरू किया, और फेस मास्क पे काम शुरू किया था इन 2014, Okay. ठीक है। पाकिस्तान में मार्केट नहीं थी, हमें ये पता था कि चाइना, जापान, और हमें किसी ने कहा कि आप ऐसा करें, हज के लिए मार्केट आप करें और उसके लिए आप करें। तो वो आज जो हमारे पास आजकल फेस मास्क मिलते हैं पूरे सिंथेटिक होते हैं, तो हमने ये किया कि चलो नैनो फाइबर बना लें, फिर मशीन भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये सिर्फ नैनो फाइबर बनाना काफ़ी तो नहीं है। तो 2015 में फिर हम सियालकोट भी गए, इंडस्ट्रियों के हमने बहुत चक्कर लगाए, धक्के भी खाए, और वर्चुअली कुछ ऐसे भी ओनर्स थे फैक्ट्रियों के, उन्होंने तो हमें बस धक्के नहीं दिए, बाकी सब किया। और उनको हम ये पिच करते रहे प्रॉब्लम के, देखिए आप फेस मास्क की बहुत बड़ी मार्केट है, हम नैनो फाइबर आपको प्रोवाइड करें, आगे की इन्वेस्टमेंट आप करें। और उन्होंने कहा कि यार आप जो ना प्रोफेसर ही करें, आप किन चक्करों में आप आ गए, ऐसे भी लोगों ने कहा। तो लाहौर की एक फैक्ट्री थी, मुझे एक उन्होंने ऐसे ताने दिए, मुझे इतना थोड़ा गुस्सा भी आया ना। तो जो हमारे मेडिएटर जो साथ में हमारे साथ जो जिसने पूरा एक कनेक्शन बिल्ड किया था, मैंने इसको कहा था, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, उस वक्त 2015 हो रहा था, 2015 की बात है। मैंने कहा यामी साहब मुझे ये पता पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन एक दिन आएगा जब हम ब्रांड बनाएंगे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अब हम बनाएंगे। तो हम बड़े गुस्से से वहां से निकले और काम भी करते रहे। तो बस मेरे ख्याल से वो जो तैयारियां थी और सब कुछ था, तो बस कोविड आ गया और ये हो गया सारी चीजें। तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट इजी कि भाई बस सोचा और हो गया इसमें। बट मैं आप इतनी बात जरूर कहूंगा कि प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट खास तौर पे, जो आपकी इनोवेशन है, जो लेबोरेटरी स्केल पे लोग हम समझते हैं कि हमने कर लिया है काम,
तो उसका जो है ना रोल सिर्फ 20% है. The rest of the 80% you have to put effort. Then the product will be acceptable. Mhm. क्योंकि लेबोरेटरी स्केल पे कर देना कि हो गया. जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप माशाल्लाह आई थिंक आप चाय या कॉफी तो आराम से बना देते होंगे. ठीक है. एक कप या मैक्सिमम आपके दोस्त आ गए तो 5 कप 6 कप, लेकिन आप मैं आपको बोलता हूँ 100 कप्स बनाने एट अ टाइम. Then you will think it doesn't mean you cannot make coffee or tea. The thing is the scale. you know आपको बर्तन Yes. बड़ा चाहिए, फिर आपको कप्स चाहिए. इवन 100 कप्स को एट ए टाइम जो फिल्टर भी करना है तो इट्स नॉट इजी उसको उठाना का मतलब आप ये समझ जाएं बस. तो अब आपको जब एफर्ट करने पड़ते हैं ना उसकी तैयारी, तो वो फिर आपको 20% जो आपको रेसिपी पता थी उसका रोल कितना होगा. ठीक है ना. तो बस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कुछ इसी तरह ही है. And how about the story of the banana leather? And ये of भी course, क्या. I'm really interested into that from my climate background and climate perspective as well. अच्छा ये भी ना बड़ी And interesting. आप प्लीज ऑडियंस को और हम सबको जो है ना अपने ECS के कोलैबोरेशन के साथ उसकी बिगिन करें and then tell us all about how it all started. ओके आई ट्राई इंशाल्लाह. देखिए बहुत अजीब सी स्टोरी है कि ऐसा नहीं होता जो प्रोडक्ट बनती है ना कि बस जो सोचा और आपने जहाँ से शुरू किया और एंड अप भी वही हुआ जो आप सोच रहे थे. Mm. तो बाज़ का आप ट्रैप भी हो जाते हैं. कुछ लोग एग्जिट लेते हैं, कुछ लोग जो ना आगे चलते हैं. बनाना फाइबर पे ना काफी इंटरनेशनली एक बूम चल रहा था कि वेस्ट में से फाइबर्स बनाए जाते हैं, कपड़ा भी बनता है. तो कुछ पाकिस्तान में इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज में काम भी लोगों ने शुरू किया. मीडिया पे भी आना शुरू हुआ तो हम पे भी थोड़ा सा ना एक एक मोरल प्रेशर आया कि यार आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आप बैठे हुए हैं और फाइबर पे लोग इतनी डिमांड आ रही है और आप क्या कर रहे हैं. तो मेरे कलीग हैं फारूक साहब माशा जिनका ये मतलब मैंने स्टार्टअप में मैं उसमें को फाउंडर हूँ, वो फाउंडर है इसके. तो मैंने कहा सर अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, हमें कुछ तो करें, पता नहीं सक्सेस होगी कि नहीं, कुछ तो करें, मतलब बहुत प्रेशर आ रहा है, लोग फोन कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं. तो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए. तो फिर हमने नैनो किलो से कुछ पैसे निकाले अबाउट 1 मिलियन. और हमने कुछ मशीन्स लगाई बनाना फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो पता ये चला कि वहाँ पे मशीन, बिजली तो है ही नहीं उधर, फिर हमने उस पे वो सोलर्स भी लगाए, सब कुछ किया. पता ये चला जो वेस्ट का जो इतना जो मतलब एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि वेस्ट को यूटिलाइज करने, पता ये चला कि जस्ट 2% ऑफ द फाइबर रिकवर होते हैं वेस्ट में से. ये बात मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही मतलब जिम्मेदारी के साथ. अभी भी जो बनाने पे काम कर रहे हैं आप उनसे ये सवाल करें कि आप मशीन आप लगाते हो, आपके बनाने के स्टेम जो भी वेस्ट होते हैं उसको जब कलेक्ट करते हो, आप कलेक्ट करने के बाद जब फाइबर्स आप निकालते हो उसकी जो रिकवरी है ना सिर्फ 2% है. अगर कोई कहता है ना कि मैंने 3% भी निकाला तो मतलब बहुत बड़ी बात है. मतलब मैं यकीन नहीं करूंगा इस पे 3% पे. इसका मतलब ये है कि 98% जो वेस्ट है ना अभी भी उसकी यूटिलिटी का मसला है. तो वेस्ट यूटिलाइज आप कितना कर रहे हैं वो तो अब एक आपके सामने एक वैल्यू आ गई. अच्छा ये जो फाइबर है इसको मजीद जब कॉटन के साथ ब्लेंड करना है तो उसको आपको वॉशिंग करनी है, इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है, तो वो भी थोड़ा सा एक इंटेंसिव प्रोसेस है. फिर आपका बच जाता है 1%. अगर वो भी वेस्ट हम निकाल दें तो इसका मतलब ये होगा जस्ट 1% आपका फाइबर यूटिलाइज होगा, वेस्ट यूटिलाइज होगा और कॉटन के साथ आप ब्लेंड करें. अच्छा इसका जो बिहेवियर मतलब ये वो स्टोरीज है कि अब कॉटन फाइबर इट्सेल्फ कितना सस्टेनेबल है. आप देखें इसमें कितनी सारी पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इसमें कितने सारे पानी इसमें इस्तेमाल इस्तेमाल होता है. तो उसका जो पूरी सप्लाई चेन है ना वो इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है हम सदियों से करते हुए आ रहे हैं, इट्स ओके, एक इकोसिस्टम बन गया है हमारा. Hmm. लेकिन देखा जाए ना ये सस्टेनेबल फाइबर नहीं है. ये भी मैं आपको ना बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ. From cotton. हाँ कॉटन इससे बेहतर ये कि हम सिंथेटिक इस्तेमाल करें. मैं ये नहीं कह रहा Hmm. कि मैं को सिंथेटिक को पॉलीमर्स को या
उसको मैं को प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन अगर जब हम कंपैरिजन करें ना, देखें, हम जब कॉटन के कपड़े भी पहनते हैं ना, तो आपको उसमें वॉश करने के लिए भी और फिर उसको इस्त्री करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख, अच्छा ये मेला भी जल्दी हो जाता है, फिर वॉशिंग के लिए आपको इसकी इंटेंसिव वॉश भी करनी, ये आप सब कुछ जब साइकिल्स देखते हैं ना, अच्छा इसकी इतनी लाइफ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यूजुअली कॉटन, हम जिस जिस कंट्री में हम रहते हैं, इतना आसान नहीं है कि आप उसको 2 दिन कपड़े को चलाएं या 3 दिन, मतलब मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। आप कितने भी क्लीन एनवायरनमेंट में हो, एक स्वेट की स्मेल, ओडोर एक आ ही जाती है कपड़ों के अंदर। अब उसके मुकाबले अगर सिंथेटिक की बात करें ना, उसमें आपको पानी की जरूरत है, कुछ भी नहीं, सारा अभी तो पानी आपको पता है कितना बड़ा चैलेंज हुआ हुआ है ना। हम्म। इवन दूसरी रिसोर्स आजकल ज्यादा आसान है बनस्पत पानी के, इसमें आपके पैसे यूज नहीं। अच्छा, अब जापान तो इस पे काम कर रहे हैं कि ऐसे आर्टिकल, ऐसे फाइबर्स बनाएं जिसमें ओडोर भी नहीं होती, और कॉटन से ज्यादा लाइटर वेट है, आपको आयरन करने की जरूरत नहीं है, और अगर वॉश भी करते हैं तो वो क्विक ड्राई भी है। मतलब अगर ये आपको, एक तो क्विक वॉश हो जाता है, आपको हल्के से डिटर्जेंट में वॉश हो जाता है, वो भी आपका लोड कम हुआ, और आपको विद इन 2-3 आवर्स में आप उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लाइफ साइकिल असेसमेंट के अब हिसाब यस से। एग्जैक्टली, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो मतलब कॉटन, मतलब मैं कहने की बात ये कि इसी जिस तरह कॉटन पूरा स्टैब्लिश हुआ हुआ है ना, फ्रॉम क्रॉप से लेकर जाके फाइनल प्रोडक्ट तक, बनाना को भी ऐसे ही करेंगे तो कामयाब होगा। सिर्फ मैं ये कह लूं कि मैंने कॉटन फाइबर बना लिए तो ये हो गया काम, ये काम हो नहीं गया, ठीक है। अभी आप पीटीवी पे, जियो पे, मुख्तलिफ आपने बनाना फाइबर पे आपने बहुत हाइप्स देखी होंगी, लेकिन वो बेचारे, और मैं काफी लोग हमारे साथ एनजीओ भी राब्ते में हैं, उन्होंने जज्बात में आके ना वो मशीनें लगा भी ली। उन्होंने कहा कि भाई टेक्सटाइल में बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन डिमांड मतलब है वो जो ना बस खास तौर पे जैसे डेनिम इंडस्ट्री है, वो 1-2% या 10% बनाना फाइबर को यूज करते हैं, वो फिर अपने क्रेडिट लेते हैं ना आगे जाके ना उसका, हम्म। बाजू कार्बन क्रेडिट भी ले लेते हैं और इस तरह से करते हैं। तो वो उनका एक अपना सर का दर्द है, लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं कि पढ़, तो बात ये हुई कि करते करते हमने कहा भाई ये तो हमारी बेबी नहीं है, ये तो मतलब हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है इसके अंदर ना। तो फिर हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसी एक शीट्स कोई बनाए किसी और पर्पस के लिए, कुछ विंडो ब्लाइंड्स बनाए, इस तरह से सोच रहे थे हम। तो हमारे एक स्टूडेंट थे, वो भी हमारे साथ इनोवेटिव पार्टनर है इसमें। तो हमने कुछ कोटिंग्स वगैरह पे की, तो हमें ना थोड़ा सा फील आया कि भाई ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेदर की, ऐसा लग रहा है कि टच लग रहा है ना। फिर थोड़ा सा और वर्कआउट किया, फिर वो उस पर कुछ कलरिंग्स की, तो कुछ प्रोडक्ट बनाई, तो लोगों से हमने कुछ हमने प्रोडक्ट भी बनवाई, हमने कहा स्टिच देखे हो सकते हैं, स्टिचिंग में भी कामयाब हो गए, छोटे से सैंपल्स हमने बनाए। तो फिर जो है ना हमें लगा कि यार ये कुछ लग रहा है कि मतलब हमारे कंट्रोल में भी है, फाइबर हम्म। की वेस्ट भी यूज हो रहा है, और सब कुछ हम बंद कमरे के अंदर काम कर सकते हैं, छोटी लेवल पे ना, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे होती है। एंड दिस बूम, देन वी डिड इट, और हमने फिर एग्जीबिशन भी लगाई, हमने लोगों से फीडबैक लिया कि आया आपको लेदर लगा, अल्दो कि उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल थे और अभी भी हैं। बहरहाल हम उसको डेली की बुनियाद पे हम इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और लकीली हमने माशाल्लाह, इवन हमें अभी आप देखें ना, शार्क टैंक भी चल रहा है ना, उसमें भी हमारे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ओके। तो इत्तेफाक हुआ कि हमें कॉल भी ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि आप जो ना अभी आ जाए, उन्होंने कहा भाई हम जामशोरों में बैठे हैं, अभी तो हम मतलब कैसे आ सकते हैं, पिच के पिच तो एक तो हो चुकी थी, लेकिन शूटिंग के लिए मैंने कहा भाई ये तो मुमकिन नहीं है हमारे ना, आप हम कम से कम 3 घंटे होते हैं ना हम पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसका मतलब आप नहीं आ रहे। मैंने कहा ठीक है, आप ये समझते तो नहीं आ रहे। तो कहने के बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बंदोबस्त किया था, इत्तेफाक से ईसीएस में हमारा ये आइडिया पिच हो गया, और वो लेडीज ब्रांड्स के लिए फिर हमने उनके साथ एक एक्सक्लूसिव जो ना साइन किया है कि पाकिस्तान में जो भी लेडीज की प्रोडक्ट्स होंगी तो हम उन्हीं को ही देंगे ना। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टिच प्रोडक्ट, क्योंकि स्टिच इज नॉट अवर बेबी राइट, हम सिर्फ स्किन हम्म। बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, मोड को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब एक दो और भी, और अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक दो और भी कंपनीज है पाकिस्तान में, वो भी हमारे पास ऑन बोर्ड है, तो उनको भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द प्रोडक्ट देंगे। और आप इज इट देख, लाइक आपने देखा इज इट होगा कि ईसीएस में ना वो शेल्फ में भी आ गई प्रोडक्ट, वो सेल हो रही है। मैं तो खैर पाकिस्तान या ईसीएस गए हुए बहुत टाइम हुआ है, लेकिन आई सी इट ऑनलाइन। ओके, इज इट कॉस्ट इफेक्टिव तो बनाना लेदर? कॉस्ट इफेक्टिव तो है, क्योंकि जो जो मिनिमम जहाँ से लेदर स्टार्ट होता है ना पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फीट,
तकरीबन 300 से 400 से स्टार्ट होते, फिर 1200 1500 तक भी जाता है पर स्क्वायर फीट ना। तो हमारी जो कॉस्ट है वो बस 300 350 से स्टार्ट होती है, यूँ समझ लो। तो मतलब इस कंपेरेबल। बाकी अगर जी इसके आप वो लेंगे ना, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वो तो That's मतलब है ही नहीं ना उसका, जो क्योंकि जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना वो सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एक दो चीजें हैं जहाँ पे कुछ सॉल्यूट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मतलब मैनेजेबल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। great. Yeah. तो बाकी जैसे Um, टेनरी इंडस्ट्री है ना, टेनरी से कंपेयर करें तो वो तो Tannery. What's tannery? ये जो लेदर Okay. इंडस्ट्री है, Okay. Leather. लेदर, जी हाँ, उसको टेनरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो टेनरी में Okay. जो है ना उसकी जो मतलब केमिकल्स हार्मफुल जो यूज होते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है उसका। Okay. जी। Okay. So that was maybe not all, but like some of your introduction. But मकसद ये सेशन करने का of course with Shark Tank now being live in Pakistan और वैसे ही पाकिस्तान के बाकी सारे मसलों की वजह से everyone especially youth in Pakistan and like all of our attendees like हम सबको दिल में जब भी कोई अपनी जॉब से बेजार हो गया या फिर एट मोमेंट्स स्पेशली वाचिंग शार्क टैंक पाकिस्तान नाउअडेज लाइव कभी ना कभी किसी हम सबके दिल में ये ख्याल आता है कि लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन बिल्कुल और बिल्कुल। मतलब वो जब ये गट फीलिंग हमें आती है दैट्स काइंड ऑफ वेरी स्ट्रांग फीलिंग जब भी आती है लाइक आई हैव बीन थ्रू दैट आई नो पीपल माय फ्रेंड्स माय फैमिली who have हम्म, been through those phases. But then, of course, not all ideas end up in a successful business. And like, किसी के भी successful business से बहुत ज़्यादा उससे पहले journeys होती हैं. And then with Shark Tank, हम बहुत सारे terms भी सीख रहे हैं, जैसे serial entrepreneur and so on and so on. So I'll ask you many questions. How to start this journey, how to be resilient, and on that. So just so that it's like recording now onwards is a guideline for people to Pakistan may they have the gut feeling to start. And once my questions are finished, we'll move towards the audience and we'll try कि हम limited time के अंदर जितने भी लोगों के questions को respond कर सकें. So my first question, considering Pakistan's situation as of 2025, मुझे let's say gut feeling I have a certain product in my mind, but then I think of the entire situation. कि यहाँ पे तो यही होता है, यहाँ पे तो like सीधे रास्ते पे आप नहीं कर सकते. There are so many challenges in summary that जो कि मुझे डरा के फिर बिठा देते हैं as a common young man living in like young person living in Pakistan. So how do I face that and उनको मैं कैसे come across करूँ? देखिए पाकिस्तान में चैलेंजेस तो हैं और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है ना। Yes. ठीक है ना, लोग यहाँ पे पानी बेच के मिलियनर बन गए, सिंपल वाटर। मुझे याद है आज से तकरीबन 25 26 साल पहले जब नेस्ले ने पानी स्टार्ट किया था, लोग हंस रहे थे कि यार देखो पाकिस्तान में जो ना पानी मतलब बेच रहा है, मतलब सिंपल वाटर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से कन्विंस हो गए हम लोग ना, ठीक है। मतलब डिस्पाइट के मतलब अब इतना पेनिट्रेट कर गई ये प्लास्टिक बॉटल्स और सारी चीजें, ठीक है, जो अब इससे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो जब पानी बिक सकता है तो फिर तो मतलब क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि हमें दूसरों से सीखना चाहिए, और जितना आप लोकली एक्ट करेंगे ना उतना आप आसानी से काम कर सकते हैं। मैं आपको अक्सर एक मिसाल देता हूँ। हम बचपन में ना कभी कभी काला मंजन इस्तेमाल करते थे, टूथ उसमें, बचपन में कभी Mhm. काला मंजन आता था। अब मैं काला मंजन कहता हूँ ना तो लोग कहते हैं यार मतलब अभी तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, ठीक है। अगर किसी के घर में जाएंगे, वॉशरूम में जाएं, तो हमारी कॉस्मेटिक्स होती हैं ये सारी चीजें, अगर उसमें काला मंजन पड़ा हो तो यू ही देखना, ठीक है ना। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, राइट, ठीक है। Yeah. बट वेन आई हैव अ वेरी गुड पैकेजिंग, राइट, और उस Charcoal. पे चारकोल लिखा हुआ हो, ठीक है, ठीक है, तो दैट्स फैसिनेटिंग, राइट, Yeah. ठीक है। मैं आपको ना गुड़ की मिसाल देता हूँ। मैं आपको ना अभी आइडिया बैठे बैठे आपको जो भी सुन रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब मैं आप हमें सबको पता है, पूरी वेल प्रूवन है कि जो गुड़ है बड़ा फायदेमंद है, फिल्टर हम्म, करता है आपको सब कुछ। लेकिन अब गुड़ की, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ ना गुड़, तो आपके जहन में शक्ल आ रही है, राइट। लेकिन अगर गुड़ के क्यूब्स हो, ठीक है, उसकी पैकेजिंग हो और प्रेजेंटेबल हो, राइट, और उस पे तिल लगे हुए हो, कुछ भी, आई मीन यू थिंक ऑफ, उसकी अच्छी पैकेजिंग हो, तो आप यही काम शुरू कर सकते हैं और यहाँ से आप आराम से मिलियनर बन सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। हम एग्जैक्टली। अपनी अपनी ऑफिस में गुड़ रखना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं है, मुसीबत ये है, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह ही मुख्तलिफ किस्म की आप टर्किश की भी आप मिठाइयाँ देखें, उनकी पैकेजिंग देखें और मुख्तलिफ, ठीक है। हम फूड के अंदर, अच्छा, फ्रूट्स की मिसाल लेते हैं। मैं कहता हूँ यार, फ्रूट का काम करना है। आप सोचेंगे, कोई सोचेगा यार फ्रूट का, यार तो ठेले की बात कर रहे हैं। बात हम ठेले की नहीं कर रहे। हम एक जो ना अच्छी सी एक जार बनाए, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स के कट्स करके एक मिक्स फ्रूट का एक बॉल बनाए, ठीक है। ठीक है, ये बहुत फ्रूट कट करके आप अच्छी सी उसकी ब्रांडिंग पैकेज आप मार्ट मार्ट वगैरह में आप सप्लाई कर सकते हैं। अब मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे घर वाले कहते हैं बनाना लेने, ऑरेंजेस लेने, चीकू ले आना, ये ले आना, चार पांच, ठीक है। अब कभी कभी घर वाले नहीं है या गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ इतने सारे फ्रूट लूंगा, कटिंग करूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर ये जैसे हम दोस्त बैठे हुए हम पार्टी कर रहे हैं, तो हमने में अगर दो दो तीन अगर बाउल में कटिंग किए हुए हैं, बड़े अच्छे पीस मिक्स फ्रूट में, वो मैं अगर मार्ट से उठा लूं, तो आप कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये तो मैं यस। आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो हम आपको ना, यहाँ पे आपको सिलिकॉन वैली में जाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको कोई बड़े एंटरप्रेन्योरशिप के आपको जो है ना कोर्सेज करने की जरूरत है। तो बात ये कि लोकल ही हम इतनी सराउंडिंग में चीजें हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई अपने गांव से काम शुरू करो। आपके गांव के अंदर एक जगह मैं गया हुआ, तो मुझे अक्सर फोन आते थे कि सर इनका ना आप जॉब के लिए कुछ करें। तो बड़ग्राम की साइड पे फिर मैं गया, तो उनके मैंने गांव भी घूमा, इसी वो असल मेरा दोस्त उनका इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं उनके पास गया था मिलने बैठने के लिए। तो उनका बेटा था कि सर देखिए हमारे पास हालात बड़े, मैंने कहा यार ये जो दरख्त है किस चीज़ है? उसने कहा इंजीर के दरख्त है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आपको अंदाजा है आपके पास क्या चीज़ें हैं? तो मैंने सारा उसको बताया, मैंने कहा यार आप इस इंजीर को, कह रहा ये नस्ल भी ना कोई अच्छी वाली है हमारे, जो हम जो ना उसको तोड़ के हम जो ना हम रिश्तेदारों में बांट देते हैं, हमारे बहुत पुराना वो चल रहा है। मैंने कहा भाई आप खैर ख्वाही करें, अच्छी बात है, लेकिन भाई पहले तो अपना रोजगार करेगा ना। ये कहाँ का आपका मतलब दीन इस्लाम है या जो भी क्या आपका सोसाइटी है कि आप अपने घर का पहले नहीं कर रहे और आपने बांटना शुरू कर दिया है। आप पहले तो हम अपने घर का तो करेंगे ना, अपने बच्चों का, अपने रोजगार का सबसे पहले, वो सबसे अफजल सदका होता है, उसके बाद में आप दूसरों का करते हो। दीन भी हमें यही सिखाता है। तो मैंने कहा भाई इसकी आप पैकेजिंग करें, आपको मैं टीसीएस या ओसीएस वाले एसीएस वालों के साथ, ओसीएस वालों के साथ मैं आपको लेपर्ड वाले जो है, मैं आपको उसका अकाउंट ओपन करवा देता हूँ। आपके घर से पैकेजेस उठाएंगे और पूरे पाकिस्तान में आप सप्लाई करें। अब वो उसने शुरू तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल इस तरह से हमारे हर बंदों की स्टोरीज हैं। तो हम शुरू कर सकते हैं फूड का बिजनेस है, या टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो हमारे पास लोग फोर्सफुली अपनी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसमें सेंसर होगा, इसमें ये होगा। एक मैं अक्सर फनी स्टोरी अक्सर अपनी स्पीचेस में बताता हूँ कि एक दफा एक जापानीज कंपनी थी बिस्किट बनाने की, राइट। तो उन्होंने अक्सर क्या होता था कि कोई पैकेट है ना खाली पैक हो जाता, बड़ी एम्बेरेसिंग होती, तो उन्होंने क्या एक्सरे मशीन बनाई ताकि पैकेजिंग से पहले हमें पता चले इसके अंदर कोई बिस्किट खाली है, तो उसको रोबोटिक आर्म आती है और उसको निकाल देती है बाहर। पाकिस्तानियों ने क्या किया, एक फेन लगा दिया, पेडिस्टल फेन, हवा से वो उड़ जाता। तो आपको इतनी बड़े सेंसर या एक्सरे मशीन लगाने की जरूरत नहीं। तो बात ये है कि फोर्सफुली जो ना, मेरा तो यही मैसेज होगा, फोर्सफुल आप ढूंढे मत कि कोई टेक्नोलॉजी का, अगर कोई स्टार्टअप है आपसे, वो आपसे कोई ऊपर है, नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। सोसाइटी में वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी और प्रॉब्लम के लिए बने होंगे, हम किसी और प्रॉब्लम के लिए बने होंगे, ठीक है। किसी और, अब हो सकता है कि कोई ऐसे बनाना में से, आपको पता है फ्रूट्स भी बनते हैं, इसके अचार बनते हैं, बनाना का एक एक पत्ते से लेकर जड़ से लेकर हर चीज में से प्रोडक्ट्स बनती हैं। और बहुत ही अंडररेटेड जो अंडररेटेड मतलब प्लांट है हमारा, हम सिर्फ उसका जो ना वो फल ही खा रहे हैं बस, ठीक है, जो की शेप में।
अदरवाइज इसके अंदर मतलब इसकी कैंडीज भी बनती है, यहाँ तक जो ना इसके अंदर के टिप्स बनती है। हाँ वो भी बनती है, ठीक है। तो मतलब आइडियाज तो हैं हमारे पास। दूसरा मेरा मैसेज ये होगा कि जैसे आपने कहा चैलेंजेस आते हैं, फेलियर का फियर होता है, मतलब करें नहीं करें। देखिए स्केल होगा बाद में। मैं कहता हूँ कि अगर आपने 10 पीसेस बना लिए, फिर आप जो है ना 20 बनाए, फिर 30 बनाए, आस्ते आस्ते स्केल करें आप, ठीक है। और अपने आप को सिस्टम से गुजारें। सिस्टम से गुजारने का पूरा सिस्टम मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेलिंग तक, मार्केटिंग तक, आपके कस्टमर की भी सुननी पड़ेगी और वो फीडबैक लें, फिर आप इटरेशन करें अपने प्रोडक्ट में, फिर उसको दोबारा रीलॉन्च करें उसको। तो कंटिन्यूस आपको एक करते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि आप ग्रो करते जाएंगे, और ग्रोथ जो है कंटिन्यूस होती है, ठीक है। और कुछ देयर बिजनेस होते हैं ना वो फॉर एवर भी नहीं होते हैं। कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जिनकी 5 साल लाइफ होती है, 8 साल होती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन करना जरूरी है, एग्जीक्यूट करना जरूरी है। there's a question in chat from Sana Fahim, and she is asking, how can we start a business without having a huge amount of money, being as a student? देखिए बिजनेस के लिए ना पैसा नहीं चाहिए। ये हमेशा कभी अगर एंटरप्रेन्योरशिप के आप कभी वर्कशॉप अटेंड करें ना, तो जो आस्क होता है ना, आस्क आस्क हम कहते हैं कि व्हाट इज योर आस्क, मतलब आप कितने आपको पैसे चाहिए आपको काम करने के लिए। Mm-hmm. तो आप इतने कैलकुलेटेड हो, आप बोले कि मुझे 1 मिलियन 1.9436 मुझे ये चाहिए। क्या आप इतने क्लियर हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बहुत पहले मैंने एक बार पिच किया था एक आइडिया। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका आस्क क्या है ना, तो मैंने कहा आप मुझे जो ना दे दें 3 से 4 लाख, 3 से 4 करोड़। उन्होंने बहुत जबरदस्त मुझे एक बात बोली जिससे मुझे एक मतलब लेसन मिला। उसने कहा 3 या 4, क्योंकि आपकी 3 या 4 में जो वेरिएशन है 25% है, ठीक है। मतलब मैं खुद क्लियर ही नहीं हूँ, मतलब क्योंकि मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, मुझे तो कदर ही नहीं है ना। मतलब मैंने 25 लाख रुपए को 2.5 मिलियन की ये वैल्यू की, ठीक है 2.5 मिले या ना मिले, मतलब इट्स ओके, अगर ये मुझे ये मिल जाए तीन मतलब मिल जाएंगे ना 30 मिलियन तो भी ठीक है। मतलब इस तरह नहीं होगा। तो जिन्होंने भी सवाल किया है, तो सबसे पहले आपका आइडिया क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपका कस्टमर का सेगमेंट कौन सा होगा, ठीक है। आया आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, आपको क्या क्या चाहिए। जरूरी नहीं कि फ्रॉम द डे वन आपका अपना ऑफिस हो, आपके पास लग्जरी सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप हो सकता है अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका काम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ना पैसे नहीं चाहिए होते। सबसे पहले तो आपको आइडिया की क्लियरिटी, उसकी एग्जीक्यूशन क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द आपको मैं आपको बताऊं, जो स्टार्टअप का जो फेल्यूर है ना, वो दो हैं जो कि बहुत बड़ी, मतलब तीन है, एक वजूहत बनती हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल्यूर होता है। नंबर वन, आइडिया वो ऐसा चूजा जो मार्केट में डिमांडिंग नहीं होता। Mhm. कितने अच्छे पैसे लगा ले कुछ वो डिमांडिंग नहीं है, वो बाद में पता चला ये डिमांड ही नहीं आ रही। दूसरा तो उनकी लैक ऑफ टीम, जो टीम होती है ना, वो कहते हैं कि सब कुछ हम करेंगे, मार्केटिंग में हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, सब कुछ का एक्सपर्ट, और एक ही जैसे लोग उठाए हुए हैं, एक ही जैसा सोचते हैं। जीशान कहता है कि यार ये हम कर दें, सामने वाला भी मुझ जैसा है, वो कहना हाँ सर कर दें। तो फिर तो ये तो टीम तो नहीं हुई ना। टीम तो होती है थोड़ा सा, थोड़ा अगेंस्ट में, थोड़ा डिफरेंट सोचिए, वो भी बताए कि नहीं सर ऐसा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। थर्ड जो होता है ना, वो लैक ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग। इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किनका, मतलब अब टीम भी आपकी बेशक अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग में आपको 2 करोड़ रुपए दे दो, आप जो है ना 10 दिन के अंदर जाया कर दें, आप पता ही नहीं चलेगा कि एसेट्स क्या है, मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मुझे टैक्सेशन कैसे करना है, आपको नहीं पता चलेगा। कि ये जो पैसे आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ना, आया ये मुझे रिटेन प्रॉफिट है उसी के अंदर डालना है, या ये मुझे मिल गया मैं गाड़ी खरीद लूँ। आपको एक अच्छा बिजनेस मिल गया, आपको मिल गया जो ना 60 लाख रुपए आ गए, आपने कहा यार ये तो जबरदस्त काम हो गया। सीधा आपने जाके ना जो भी आपकी बहुत अरसे से जो ख्वाहिश और रुकी हुई थी आपने वो पूरी कर ली। तो बिजनेस ऐसे नहीं चलता, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। तो पैसों की जरूरत बढ़ती है बाद में। पहले ऑन पेपर आजकल जो ना बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप फॉलो करें, उसमें शीट्स को आप भरें, और आप अपने आप को एक इमेजिन करें कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर और आप इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हो।
और एक एक चीज आपको लिखनी पड़ती है कि आया मोबाइल फोन आप यूज करेंगे उसका बिल कितना आएगा, रेंट सर्विसेज क्या होंगी, ठीक है, और ये सारी चीजें बहरहाल। तो उसके बाद जो पैसे की, तो पैसा जरूरी नहीं है ओके। स्टार्ट कर। हमें ओके, 1 second, now somebody has raised a hand. Okay, Aditya, you can ask your question. Hi, thanks for such a wonderful talk, and we really enjoyed. I'm Abdul Fattah, and you are a reason of for motivation and inspiration for us, and we feel proud when we see your struggle and your journey. I have a question regarding, as I'm a PhD student in quantum computing. I have a question like how different it is working in a lab or doing research and then building business, like making your company. What kind of work is required for the second part of your like journey? Means if you want to build a company, what things you need, what expertise you need? Because as a researcher, I don't know much about building company, like what rules and regulations we need. So for that, how we should tackle the situation? It's a red car principle. I think if I ask you, go outside and see how many red cars passes through, and you will start, and I think you will start noticing it, right? Yeah. Okay. But before I ask the question, you never notice the red cars. Yeah. Is it true? Okay. देखिए बात ये है कि आप माशाल्लाह बहुत आसानी से अपना इंट्रोडक्शन करा लिया कि आप यू आर ए पीएचडी स्टूडेंट। आप उनसे पूछें जो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्टिल अनएबल टू गेट एडमिशन, और उनको पता ही नहीं है कि पीएचडी कैसे होगा, क्या होगा मसला। तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, और आपको ये पता है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। वो आपको क्यों पता चले स्टेप्स? क्योंकि आपकी इंटेंशंस थी, योर माइंड सेट वॉज कि भाई मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। फिर आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों के साथ आपने उठना बैठना शुरू किया, ऐसे लोगों को आपने कॉल्स की, ऐसी यूनिवर्सिटीज को आपने या पेजेस को आपने फॉलो करना शुरू किया, एंड फाइनली यू गॉट द योर पोजीशन। ठीक है, ऐसे ही होता है। हमने भी पीएचडी Yeah. करनी थी तो ऐसे ही किया। मैं जब जापान पहुंचा था, मुझे वो यही कहते रहे कि यार उस यूनिवर्सिटी को एक 100 साल हो चुके थे ना उस यूनिवर्सिटी को। तो उन्होंने कहा यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी इन दिस यूनिवर्सिटी, हाउ डिड यू फाइंड अस? मैंने कहा बस मैं सर्च करता रहा और बस मिल गया। मतलब शिंचू यूनिवर्सिटी का नाम आ गया और मैंने अप्लाई किया। तो बात ये है कि बिजनेस भी कुछ इसी तरह ही है, इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट। अगर जी आपने करना है, ठीक है, हमारे पास दो ही रास्ते थे। या तो हम मैंने आपको बताया 2017 में तो मैं प्रोफेसर बन भी गया था, और उसमें हमें सिर्फ 15 रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए होते हैं। यूजुअली होता यही है कि एक ट्रेंड है, एक विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, कि जो प्रोफेसर हो जाता है इट्स एंड ऑफ जर्नी। तो कहते हैं यार बस हो गया ना काम। अब Hmm. 15 पेपर की मतलब क्या वैल्यू है? लेकिन बात है कि एक जो ना वो था कि नहीं यार, मतलब सोसाइटी में प्रोडक्ट जानी चाहिए, मतलब ये क्या बात होगी, रिसर्च पब्लिकेशन कर दी बस हो गई ना पब्लिकेशन। तो जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ रही, लोगों के कोई मसला हल नहीं हो रहा, एक बेचैनी होती है। तो जब तक वो बेचैनी नहीं होगी, आप ऐसे लोगों को फॉलो करें और सीखते रहें चीज़ों को, तो फिर आई थिंक वो आप में स्किल्स आ ही जाते हैं। जब आप अपने आप को इंगेज करते हो, एक स्टेज होती है इनिशियली आप लर्न करते हो, फिर जब लर्निंग के बाद, लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है ना, जब अपने आप को Hmm. इंगेज करते हो तो फिर और रियलिटी में आप लर्न कर रहे हो तो चीज़ों को ना। जैसे आप अभी पीएचडी कर रहे हैं, आपने सुना कुछ होगा, लेकिन जब पहुंचने के बाद, मुझे नहीं पता आप कौन सी कंट्री में, Ireland. आयरलैंड में, ठीक है ना, अब Actually, आयरलैंड, yeah, we are in same city, Galway. So ठीक है ना, ठीक है, अब आयरलैंड, आयरलैंड बिल्कुल एक डिफरेंट एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे, ठीक है ना। तो जाहिर बात है आयरलैंड का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, जापान का डिफरेंट है। वहाँ पे आपको इतने हलाल हराम के इतनी ज्यादा मसले नहीं होंगे जितने हम लोग चाइना और जापान वहाँ पे फेस करते थे। तो हालात सिखाते हैं। और दूसरी बात ये कि कंसर्न, बस जैसे आप पीएचडी खत्म होगी, फिर वन सेकेंड आपके इंटेंशन है कि आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है या आपको किसी एकेडमिक्स में ज्वाइन करना, तो आपकी ओरिएंटेशन अकॉर्डिंगली होती चली जाती है।
It's all about, destiny. Okay, so one more thing, like अगर हम रिसर्च से फिर कंपनी के ऑपरेशंस में जाएं, वो भी खुद ही मैनेज करें, तो ये नहीं लगता कि शायद हमारी जो स्पीड है वो दोनों तरफ वो डिवाइड हो जाएगी और शायद हम कुछ स्लो हो जाएंगे कि ऑपरेशंस कंपनी मैनेजमेंट देखें या फिर अपनी रिसर्च देखें? देखिए, मैं आपको वन से एक और मिसाल देता हूँ। अगर ये आप एक दिन लेबोरेटरी से आप आए थके हारे, और इतना आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, और आप रात को ना 11 बजे 12 बजे आप घर आते हैं, और आपने सोचा हुआ है कि यार अब कुछ नहीं, बस अब बेड ही है, और एनर्जी, अगर ये वाकई में हम, अगर ये आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करें, शुगर लेवल चेक करें, वो बहुत ही हर चीज लो हो चुकी है, एनर्जी नहीं है मकसद। हम्म। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई आग लग जाती है या कोई जानवर आ जाता है, कोई मसला होता है, तो एनर्जी मुझे पता कहाँ से आती है। वो तो मतलब जस्ट इंस्टेंट शायद कोई कुछ तो है ना। स्टोर बस की होती है सबकॉन्शियसनेस में, जो कि फिर दिस एक्टिवेट इज, हो जाएगी। असल में बात पता है क्या है? जब आप सवार करते हो ना चीजों को, तो फिर आती है जुनूनियत। जब तक जुनूनियत नहीं होगी ना, तो मतलब अभी आपने हमारी भी जो एक्टिविटीज सिर्फ आप यही देखते होंगे ना, कि भाई फेसबुक पे थोड़ा बहुत रख दिया, मतलब ये तो हमारा अभी 2% 3% भी नहीं है, जो आप लोगों को पता है। ठीक है, कि हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हमें बहुत सारे काम और भी करने होते हैं, हमें ऑफिशियल भी काम करने हैं, हमें जो पब्लिकेशन भी करनी है, इस किस्म की एक्टिविटीज हैं, ट्रैवलिंग है, और बिजनेस है, मतलब फिर जो ना, अच्छा फैमिली भी है, ये मतलब फैमिली भी है ना। अभी तो आई डोंट नो आपकी फैमिली कितनी है या कितनी ग्रोन है। मेरी अपनी बेटियां ना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट मेहरान यूनिवर्सिटी में। तो मेरी फैमिली बड़ी भी है, छोटे बच्चे भी है, सब है। तो बैलेंस करना है। लेकिन ना वक्त के साथ साथ इंसान सीख जाता है, मतलब अल्लाह ताला को जो ना काम लेना है ना फिर, लेकिन आप अपने शोल्डर मजबूत करें तो हो जाएगा, हम्म। बिल्कुल हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक है, कि थैंक यू आप सो थके मच। हुए हैं कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स नॉट अबाउट 9 to 5। कभी कभी आप काम नहीं करते, मैं भी कभी, आप भी शायद पीएचडी कर, हम इतने डीट हो जाते थे कि मैं 3 दिन 4 4 दिन घर में बंद हो जाता था। मैं मेरे का आज फिर लेबोरेटरी जाना ही नहीं, मैं सारा दिन यूट्यूब पे जो ना मूवीज देखना, कार्टून्स देखना, और बस जो ना स्काइप पे बात करते थे हम। बस एक जिद होती नहीं करना, लेकिन 4 दिन के बाद ऐसा वो उस घर से, रूम से उगता जाते थे। फिर जब लैब जाते थे तो फिर वो उसकी एफिशिएंसी जो ना वो बहुत हाई होती थी। ये एक एक बुक है ना, जिगजैग प्रिंसिपल, वो आप पढ़े, बड़ी अच्छी किताब। कि हमें थैंक यू। सारे काम या करना है, इट्स नॉट अबाउट कि आप सारा दिन एक ही काम कर रहे हो। आप फैमिली को टाइम दिया, फिर आपने यूनिवर्सिटी को टाइम दिया, फिर जस्ट लाइक आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। और दूसरी बात, आप, आपका मॉडल है, मेरा मॉडल मेरा है, ठीक है। यू वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वी कैन नॉट कॉपी। ठीक है ना, ऐसे हम्म। नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि आप में कोई इतनी यूनिक जबरदस्त चीज हो, वो आप कॉपी के चक्कर में उसको आप ओवरलुक कर रहे हो। हम्म। दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। यस। थैंक यू। ओके। I have one last question from my end, and we don't have any more questions from the audience. My question is, how do we balance the innovation versus practicality? Because, like, especially when you're especially working in a lab like nanofibers, or for example, Abdul Fattah is doing a PhD in quantum computing, which is, well, a very complex example, but then काफी चीजें ऐसी होती हैं even which solves the problem of society, but how to be sure if it's just innovation or there is a practicality of it, and how do you balance between those? देखिए, फील्ड पहले कोई भी आपकी, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, कि तो मतलब फ्यूचर है ना क्वांटम कंप्यूटिंग का, राइट। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक प्रोफेसर में जापान मिले थे, वो कहते हैं कि मेरा काम मतलब बहुत डेटा से कंप्यूट करना था, लेकिन उस उन दिनों में उसके पास आइडिया तो था, लेकिन टूल्स नहीं थे। कहता वो कंप्यूटर में इतना पावर ही नहीं था कि वो इतनी सारी वो मल्टीपल यानी कि कैलकुलेशन एट अ टाइम कर सकें। और आजकल ये पॉसिबल है। ठीक है ना। एक है जीशान उस्मानी, शायद जानते हो आप। उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने भी, वो डेटा साइंस साइंटिस्ट हैं वो। तो पाकिस्तान में किसी जमाने बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, तो उन्होंने उस पूरे पैटर्न को स्टडी किया।
वो डेटा फीड किया, रन किया, एंड देन ही वाज एबल टू प्रिडिक्ट कि फला फला दिन फला फला जगह हो सकता है। और दैट वाज वाकई में वो जब जगह की वो ऐसा हुआ। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकलिटी इज, सिंपली द डेटा। आपने जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पेस की स्टडी आप देखें, मतलब क्या क्या नहीं कर सकते हम लोग। स्टार्टअप डजंट मीन कि आपकी कोई प्रॉपर कंपनी है और फिर आप तो माशाल्लाह मतलब घर पे बैठ के भी अभी छोटी मोटी कंपनी, जरूरी नहीं कि कोई इसका कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी हो, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी जो जो कैपेबिलिटी है, वो एक उसकी ना एक यूनिक सेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन जिसको हम कहते हैं, वो होनी चाहिए। और वो फिर आप पिच करें ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइज जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो काम करती है, अब सारी बातें डेटा के सेट्स होते हैं, ठीक है ना, हो सके कोई ऐसा सेट वो आपको दिया जाए वो काम, लेकिन वो आपको अपने आप को पिच करना होगा कि अभी मुझे भी इस किस्म के काम आते हैं। आपका अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। कुछ तो आपका अपना पोर्टफोलियो होगा, और उसको आप पब्लिक करना चाहते हैं, कुछ पब्लिक करें। और जो ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, उसमें कुछ नाम आपको वो जानते हो आपकी फील्ड में। आपको वो लोगों का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि नेटवर्थ जो है ना आपकी, वही होती है जो आपकी नेटवर्किंग है। आपकी नेटवर्किंग है, अगर आपको ये पता होना चाहिए आपकी फील्ड में टॉप 10 लोग कौन है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसके आगे ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, कौन सी कंपनी जो कमर्शियल लेवल पे काम कर रही है क्वांटम कंप्यूटिंग में। इट्स नॉट अबाउट द थ्योरी, राइट? लोग काम कर Mhm. रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर में, ऐसा तो नहीं। तो उनके साथ आपके राब्ते हों, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस में अगर जा रहे हैं तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करें अपने आप को कि ऐसे लोगों के साथ आपके लिंक्डइन पे या आपका हो। लेकिन इस तरह नहीं हो कि आई एम लुकिंग फॉर, आपकी जब भी ईमेल जाए आई एम लुकिंग फॉर, ऐसा ना हो। मतलब गिव एंड टेक हो, ठीक है। आप कोई ऐसा दें भी, ठीक है मैंने ये चीज़ बनाई है, थोड़ा सा आप इसको ज़रा देखें कैसे। तो मैं समझता हूँ तो फिर आप, जो आपने जैसे इनोवेशन की बात की, लोग उसको टेस्टिफाई करेंगे। टेस्टिमनी आपको मिलेगी कि हाँ आपने जो काम किया वाकई में एक सोसाइटी में जो आपके लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और आपकी कम्युनिटी भी बहुत ही डिफरेंट है, आम लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो भी इनोवेशन करें तो आम आदमी के लिए समझ में, लेकिन जो आपकी फील्ड के लोग हैं, वो कम से कम वो जाने हाँ भाई मिस लाला रुख जो है इस फील्ड में काम कर रही है। बेशक उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा सा हो, लेकिन एक दिन उसका जब हो तो सही ना, एक नोटिस तो हो, तो फिर इंशाल्लाह यू विल सेटिस्फाई फ्रॉम योर वर्क, कि हाँ भाई मुझे किसी ने कहा। होता है ना कि जिससे आप इंस्पायर होते हैं वही कहते हैं कि यू आर डूइंग वेरी गुड, तो उसका ये अल्फाज जो है ना आपको इतना एलिवेट कर देता है कि आपकी जो ना 15 साल 20 साल जो जर्नी है ना, वो ऐसा लगता है कि पे ऑफ हो गई है ना। तो उससे आपको लगता है यस यू आर ऑन राइट पाथ। ये एक बहुत बड़ी फीडबैक है ये, अगर ऐसा फीडबैक मिल जाए ना। तो कुछ तो सही हो रहा है। हाँ, अब बता आपको यहाँ भाई गलत नहीं आ गए हम, किसी जो है किसी माइंड मेज में फंस नहीं गए। इट्स ओके, मतलब आई एम इन द राइट डायरेक्शन, राइट? तो ऐसा होता है। सब मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि मतलब सक्सेस बहुत ही करीब होती है, लेकिन हम पता नहीं क्यों उसको मुश्किल, नहीं नहीं ये आप ऐसे थोड़ी होगा कि ये करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है, ये तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि फला फला को भी बहुत टाइम लगा था। इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, लेकिन अभी सॉरी सॉरी, आप अपनी बात क्योंकि करें। आपको ना अटेम्प्ट लेना है। आप अगर 100 लोगों के साथ रब्ता करेंगे तो 5 जो है ना उसमें से आपके रेस्पॉन्सिव होंगे, उसमें से 2-3 आपके साथ बिल्कुल, ये पजल पीस होता है ना जैसे, वो मिलेगा। यस। ये क्वेश्चन पहले मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि आपने सक्सेस की बात की एंड यू स्टार्टेड विथ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, यू आर नॉट देयर येट, so I'm bound to ask you a question. If you have the liberty to disclose, what are your next plans? And like, is there anything huge coming out or anything that you can disclose? मतलब ख्वाहिश ऐसी है कि हमारे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हों, उसमें मेरा थोड़ा बहुत शेयर हो, और स्टूडेंट्स और जो भी है ना, मतलब छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री हो, एक तरह से मतलब सीरियल एंटरप्रेन्योर हो, और उसमें मेरी बस थोड़ी बहुत रॉयल्टी हो और काम चलता रहे। और मैं आइडिया देने वाला हूँ बस, No, but आइडियाज। like, is there any product that you're working on?
current? हाँ आइडिया देखिए, अभी हम लोग ना फ्रूट फ्लाइज पे भी काम कर रहे हैं। अभी हमने फ्रूट बैग्स अभी लॉन्च किए हैं, उसके अभी ट्रायल्स हमारे चलने हैं इंशाल्लाह। उसमें वो नैनो फाइबर बेस किए हैं। फ्रूट फ्लाइज का तो आई बीन फॉलोइंग सिंस मैंने जब लास्ट रिसर्च और आपसे डिस्कशन हुआ था। हाँ उसमें उसमें जो ना अभी हम दोबारा उसको रीलॉन्च करने जा रहे हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से। फ्रूट बैग्स हैं हमारे कुछ, वो हमने भी सैम्पलिंग की है, तकरीबन 50 बैग्स हमने दिए हैं अभी फील्ड में, तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो ये एक दो प्रोडक्ट्स इस किस्म की हैं, और भी दो तीन प्रोडक्ट्स हैं कुछ जिसपे अभी हमने इंसोल भी बनाया है फुट के लिए ना। फ्रॉम बनाना लेदर और इस नॉट लेदर, इस बनाना भी है उसके अंदर और नैनो फाइबर्स भी है। ओके बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ओके देयर सो मच कमिंग आउट। हाँ मतलब वो भी है। तो कुछ बनाना फैब्रिक भी स्पेशलाइज्ड भी कुछ काम कर रहे हैं, डेनिम पे काम कर रहे हैं। तो अभी कुछ उस पे डेवलपमेंट स्टेज पर है। इसमें एनर्जी भी चाहिए, पैसा भी बहुत चाहिए। मतलब मतलब खर्च करना होता है, जेबों से भी जा रहे होते हैं पैसे। फॉर तो वी टेस्टिंग। ऑनेस्टली वी आर नॉट मिलीनियर्स राइट, हम तो अपने सैलरीड क्लास हम लोग हैं। और बस सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है भाई, हम जो कर रहे हैं ना, सेटिस्फेक्शन बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। कि एक ड्रीम तो ये था कि एक प्रोडक्ट था, लेकिन अब जो है ना, वो कहते हैं ना, बिल्ली का जो खून लग जाए तो फिर वो All right. Thank you so much, It's pretty Professor. good. Thank you so much. It was a wonderful conversation. आपके जो examples देके आपने जवाब दिए हैं, those are unforgettable. And I'm sure हमारे audience में भी बहुत enjoy किया. Thank you so much. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Happens.